भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 31 से 43 तक। ये मे मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा मुच्यन्ते कर्मभे ये त्वयद्भे सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमोहस्तान् विद्धि निष्ठान् चेत्स सदृशं चेष्टे स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः की करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितः तयोन् विषमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अतकेन पाप चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम अश क्रोध अश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन्मे वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्नियथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृत ज्ञानमेतन ज्ञानिनो नित्यवरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान्लेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानं मुच्यते एतर्विमोहेतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतुष्यप पाप्मान्न प्रजहीहेन ज्ञान विज्ञान नाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु स एवं बुद्धे पर बुद्ध्वा संस्भयात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम Bhagavad Gita, Chapter 3, verses from 31 to 43. Even those men who, with an uncavailing and devout mind, always follow this teaching of mine, are released from the bondage of all actions. But they, however, who, finding fault with this teaching of mine, do not follow it, take those fools to be deluded in the matter of all knowledge as lost. All living creatures follow their tendencies, even the wise man acts according to the tendencies of his own nature. Of what use is restraint by force? Attraction and repulsion are rooted in all sense objects. Man should never allow himself to be swayed by them, because they are the two principal enemies standing in the way of his redemption. Own duty, though devoid of merit, is preferable to the duty of another well performed. Even death in the performance of own duty brings blessedness, another's duty is fraught with fear. Arjuna said, now impelled by what, Krishna, does this man commit sin even involuntarily, as though driven by force? Bhagavan Shri Krishna said, it is desire begotten of the element of rajas, which appears as wrath, nay, it is insatiable and grossly wicked. Know this to be the enemy in this case. As fire is covered by smoke, mirror by dust, and embryo by the amnion, so is knowledge covered by desire. And, Arjuna, knowledge stands covered by this eternal enemy of the wise, known as desire, which is insatiable like fire. The senses, the mind and the intellect are declared to be its seat. Covering the knowledge through these, it, desire, deludes the embodied soul. Therefore, Arjuna, you must first control your senses, and then kill this evil thing which obstructs Jnana, knowledge of the Absolute or Nirguna Brahma, and Vijnana, knowledge of Sakara Brahma or manifest divinity. The senses are said to be greater than the body, but greater than the senses is the mind. Greater than the mind is the intellect, and what is greater than the intellect is he, the self. Thus, Arjuna, knowing the self which is higher than the intellect and subduing the mind by reason, kill this enemy in the form of desire that is hard to overcome. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the third chapter entitled Karma Yoga, or the Yoga of Action. जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? इंद्रिय अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल।
इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को विस्मय करके है महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।